Good morning and Assalamu alaikum, grade 6. I'm your English teacher, Miss Anam Arya. Hope you all are fine by the grace of God. Today is 5th May 2021 and the day is Wednesday. I'm going to share the screen with you. Second term syllabus, we have 4 chapters. Chapter number 6, Wildlife. Chapter number 7, Living Together. Chapter number 9, Identity. And chapter number 10, Community. Chapter number 10, uh, we have done 3 chapters and chapter number 10 is going on. अब जो हम लोग 3 चैप्टर जो कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 10 जो है वो हम अभी कर रहे हैं. कुछ टॉपिक हो गए. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट टॉपिक. आज जो हम करेंगे वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा. व्हाट आर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, ये हमारा सबसे स्टार्ट टॉपिक था. कम्युनिटी, द पावर ऑफ वर्ड्स, हमारे वर्ड्स की क्या पावर होती है. नेगेटिव वर्ड्स हो या पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं तो उनकी पावर किस तरह की है. उसके अंदर हमने कुछ प्रोवर्ब्स देखी थी. ठीक है. व्हाट आर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स. ठीक है, ये था हमारा टॉपिक. ये हमने डन किया था. एक इंटरव्यू था इसके अंदर जो हमने देखा था. उसके बाद आपको कंप्रीहेंशन दी थी जो आपने कंप्रीहेंशन डन की थी. आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज़ द फैमिली इज़ कम्युनिटी. ठीक है. अब फैमिली जो है, फैमिली भी हमारे साथ जो है, फैमिली जो है वो भी हमारी एक कम्युनिटी की तरह होती है. कैन अ फैमिली बी अ कम्युनिटी? In the following story, Anna she bans her baby brother. अब क्या इस स्टोरी में हम क्या देखेंगे कि जो है ऐना जो है, ऐना से रिलेटेड, ऐना का जो एक ब्रदर होता है उससे रिलेटेड हम पूरा देखेंगे. ठीक है. For the first time, Ben has been in hospital since his birth and Anna has not yet been be able to see him. She and her family know that the baby Ben is disabled and will never develop like other children's. Anna has been longing to see him. अब क्या है कि ये जो बैन होता है, ये जो बेबी है, लिटिल बेबी है, ये एना का ब्रदर है. ठीक है. अब वो हॉस्पिटल में होता है और उसकी फैमिली को पता होता है कि वो जो है वो डिसेबल है. वो दूसरे चिल्ड्रंस की तरह, नॉर्मल चिल्ड्रंस की तरह जो है वो उसकी जो बॉडी है वो डेवलप नहीं हो पाएगी नॉर्मल किड्स की तरह. ठीक है. वो थोड़ा डिसेबल होता है. ठीक है. तो एना ने इसको नहीं देखा होता. तो अब हम देखते हैं इस स्टोरी में हमारे पास क्या है. ये जो हमारे पास पूरी एक स्टोरी है उसको अब देखते हैं हम लोग. Mum was just settling him down to sleep. She looked much happier than she had for the last few days. She would been so disabled and bad-tempered and had cried a lot. I would had a horrible feeling that she might have leave Ben at the hospital and never bring him home. I felt very afraid that he would not love him, and if she did not love Ben, perhaps she would stop loving him too. But when I saw the tenderness on her face, I felt such relief that I could have danced all round the room. I felt as I felt as if she would been a long way along and had come home again. Come and see him, Annie, she said. I sometimes wonder if I would have loved Ben quite so much if Mom had not shown me his feet first. She lifted up the edge of the blanket, and I saw tiny, perfect miniature toe, pink as shell, so soft as petal. He must have felt the blanket move because he scratched them out and curled them up again. I had not seen anything so beautiful in my whole life. Then Mom put the blanket back over
his feet and uncover his face. I saw him, my darling little brother, for the first time. His eyes were shut, but his mouth was making a sucking movement. I could see at once that something was wrong with him. His head was far too big, the veins in it stuck out too much and looked too blue. But beside each lovely little ear was curl of hair, perfect and silky and fine. I put out my hands to touch. Can I, Mom? I said. Yes, of course, she was smiling, but in that way, that means she was nearly crying too. She felt she left me alone with Ben. I may only have been 12 and short sighted and spotty, but I know how to fall in love. I feel in love with Ben at my movement. I don't care how disabled you are. I whispered to him, I love him. I will always love you. I will protect you and look after you. If anyone going to be mean to you, they will have to deal with me first. I bent over the coat and kissed him. It was like kissing a rose. I moved a bite and I felt I would hurt. It was silly, of course. He could not understand, possibly understand, or know who I was, or even feel much at his age. He did not even have his eyes open, but I felt as if he loved me too. This is the story about the बेबी. अब क्या, अब इनकी फैमिली में, एना की फैमिली में एक न्यू बेबी आता है, ठीक है। अब वो उसका लिटिल ब्रदर होता है, ठीक है, उसका छोटा भाई होता है। तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वो एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं होता, दूसरे दूसरे बच्चों की तरह जो है वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं होता। उसकी मदर जब उसको, पहले तो वो हॉस्पिटलाइज होता है, तो उसको एक फेयर होता है, एना को एक फेयर होता है, हॉस्पिटल होता है, उसने उसको देखा नहीं होता, ठीक है। तो वो सोचती है कि कहीं मेरी मदर जो है वो, उसकी उसकी मदर उसके पास जाती है तो उसको उसका ख्याल वगैरह रखती है, तो उसके माइंड में ये फेयर होता है कि कहीं मेरी मदर जो है वो, ऐसा तो नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। तो उस तरह की उसकी जो माइंड में जो है ना, कि माइंड में जो है वो थिंकिंग आती है, ठीक है। अब उसका जो ब्रदर होता है वो क्या होता है, वो एक डिसेबल चाइल्ड होता है। उसके हैंड्स वगैरह, हैंड्स और उसके फीट जो होता है वो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे नॉर्मल किड्स के होते हैं। लेकिन जो उसका हेड होता है, हेड जो होता है उसका उसका हेड जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। हिज हेड वॉज फार टू बिग। उसका जो हेड होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। द वेन्स एंड इट स्टक टू मच। अब उसकी जो वेन्स होती हैं वो क्या, वो इट स्टक आउट होती हैं, ठीक है। उसकी वेन्स होती हैं वो क्या, बहुत ज़्यादा ब्लू हो रही होती है। वेन्स जो बिल्कुल नुमाया हो रही होती है, वो उसकी जो हेड की वेन्स होती है वो क्या होती है, वो हेड की वेन्स उसकी ब्लू हो रही होती है, ठीक है। तो वो जब वो उसको देखती है, उसकी उसका ब्लैंकेट हिलता है तो उसके फीट्स देखती है, वो उसको फीट्स देख के उसको बहुत अच्छे लगते हैं। उसका फेस देखती है, उसका फेस जो उसको टेंडरनेस उसकी बहुत अच्छी लगती है, कितना क्यूट है, इतना टेंडरनेस है उसके फेस के ऊपर। तो वो अपने भाई से जो है वो अपने ब्रदर की बहुत ज़्यादा किसेस करती है, उसको उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो कहती है इट्स लाइक अ रोज़, वो एक रोज़ की तरह है, रोज़ पेटल्स की तरह है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, ठीक है। वो 12 ईयर्स की होती है और वो अपनी मदर के साथ जो है वो उसको उसकी टेक केयर करने में, उसकी हिफाजत करने में, केयर करने में उसकी मदद करती है, ठीक है। लेकिन वो क्या, एक डिसेबल चाइल्ड होता है, लेकिन वो क्या उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ठीक है। ये अब वापस पूरी अब इसकी कम्प्रीहेंशन भी है, आपको कम्प्रीहेंशन में मैं और डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट फेयर डज एना हैव एट फर्स्ट। अब एना को क्या फेयर था, क्या उसको खौफ था। एना fears that her mother would not love Ben
and might stop loving her too. What makes Anna fear disappear? अब उसका क्या fear था जो उसको disappear हो रहा था? Anna fears disappear when the see the tenderness on her face, mother's face. अब क्या वो क्या एक टेंडरनेस की बात हो रही है यहाँ पे, उसके जो भाई के जो फेस पे क्या होती है? Anna fears disappeared when she see the tenderness on her mother's face. ठीक है. How does Anna feels when her mother show her Ben's toys? जब एना ने अपने भाई के जो है वो टोज देखे, जब उसके फीट्स देखे तो उसको क्या फील होता है, वो क्या सोचती है? She thinks she has never seen everything so beautiful in all her life. अब उसने वो सोचती है, वो क्या सोचती है कि उसने इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कुछ भी नहीं देखा, इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं था उसकी लाइफ में. Now question number 4. What does Anna see and feel when she see Ben's head? अब उसने जब उसके head को देखा तो उसने क्या सोचा, उसको क्या feel हुआ? She sees that something is wrong and feel love for him. ठीक है, उसके लिए वो सोचते कि कुछ ना कुछ तो इसके साथ गलत है, लेकिन वो क्या उसको उसके साथ वो जो उसकी जो फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा लवली फीलिंग्स होती हैं. What do you think Anna means when she says she feels in love with bands? She means that at movement she realizes she loves him completely and always will. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि एना ने कहा, जब एना ने सोचा, उसने जो वर्ड्स कहे थे, फील इन लव विद बैन. ठीक है, अब इसका क्या मीन्स है? ठीक है, she means that at the movement she realized, जब उस movement पे उसने क्या realize किया था कि she loves him completely, वो उससे completely जो है वो प्यार करती है, और क्या प्यार और उसकी जो है and always will, और हमेशा करेगी. ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज है इसकी. ठीक है, अब आपने क्या करनी है, ये जो हमारे पास कंप्रीहेंशन है, ये आपने कंप्रीहेंशन अपनी नोटबुक में डन करनी है एंड डू रीडिंग बुक पेज नंबर 163. अब 163 पे हमारे पास बिल्कुल एक छोटा सा पैराग्राफ और उसके बाद एक पिक्चर है. ठीक है, उस पिक्चर के अंदर हमारे पास टू पिक्चर डिस्क्रिप्शन है. उस पिक्चर को देख के हमने बताना है कि इस पिक्चर में क्या है. फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास पिक्चर है, फर्स्ट में क्या हो रहा है, टू डंकी क्या कर रहे हैं वो डंकीज. ठीक है, फिर सेकंड में भी डंकीज जो है वो दूर है कुछ खाने के लिए, वो एक डंकी जो एक साइड पे जा रहा है, लेफ्ट पे जा रहा है, और एक जो है राइट पे जा रहा है. ठीक है, तो अब जब वो मिल जाते हैं तो फिर क्या, वो उनके लिए खाना जो है वो ईजी हो जाता है. तो ये आपने अच्छे से इसको पढ़ना भी है और इसको समझना भी है. ठीक है, सो टुडे सेशन इज़ ओवर. आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे वाइंड अप होती है. इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ नहीं आए तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एनी टाइम. ओके, स्टूडेंट्स टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.